क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो जल्दी. A spherical soap bubble, write down. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing? At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? When its radius is 5 centimeter. Okay. So just question एक बार read करो properly. एंड मैंने कल पीडीएफ में कुछ फॉर्मूला दिया था मेंसुरेशन पे, सो आई होप सबने लिखा होगा. अगर याद भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपने सामने फॉर्मूला ओपन करके रखो. ठीक है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे लगे तो फॉर्मूला याद करते जाओ. ठीक है, सबने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, अपने पास ओपन करके रखो. ठीक है, या सो रीड कर लिया क्वेश्चन. ओके, सी अभी करना क्या है, हमारे पास स्फेरिकल सोप बबल है, हमें दिया है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब कि रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स अगर मैंने कंसिडर किया लेट आर बी द रेडियस ऑफ सोप बबल, देन डी आर बाय डी टी इज गिवन एज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, ये हो गया फर्स्ट डेटा. सेकेंड इज at what rate is the surface area is increasing. हमें पूछा क्या है, suppose S is the surface area, then we have to find ds by dt, rate of change of surface area with respect to time. ठीक है, then when its radius is 5 centimeter. So सबसे पहले start कैसे करोगे, consider S be the surface area of spherical soap bubble. Okay, R be the radius. Write down what is given. Given is dr by dt is equal to 0.02 centimeter per second. R is equal to 5 centimeter. To find ds by dt. इतना समझा सबको? ओके, सो टू फाइंड ds by dt, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, s को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t. करेक्ट, तो सबसे पहले तो s क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. टेल मी. 4 pi r square. Since s is equal to 4 pi r square, differentiate this with respect to t. Differentiate with respect to t. So ds by dt is equal to d by dt 4 pi r square. अभी यहाँ पे 4 pi कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड 4 pi d by dt of r square. फॉर्मूला अप्लाई करो x raised to n के लिए.
दिस इज इक्वल टू 4 पाई 2r इनटू, अगेन चेन रूल अप्लाई करो, dr बाय dt। इतना समझा? नाउ अभी देखो, हमें ऑलरेडी गिवन है dr बाय dt 0.02 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो एंड टेल मी वैल्यू ऑफ ds बाय dt। पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैम फिर 0.8 पाई आ रहा है। मिला सबको 0.8 पाई? ओके, सो फाइनल आंसर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट मेंशन करना भूलना नहीं। क्लियर? एनी डाउट्स? Okay, so next question is question number 9. The surface area of, write down question, the surface area of spherical balloon, a surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. 2 centimeter square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when radius of the balloon is 6 centimeter? When radius of the balloon is 6 centimeter. ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। शेप क्या दिया है पहले उस पे ध्यान दो। हमें स्फीयर दिया है, करेक्ट, एंड देन सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट मीन्स सपोज इफ एस इज अ सरफेस एरिया, देन ds बाय dt हमें दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज गिवन। ओके, then at what rate the volume of the balloon is increasing? That means if suppose V is volume, then they are asking dV by dt. ठीक है? When radius of the balloon is 6 centimeter, that means R is equal to 6 centimeter. After analyzing question, then solution लिखना start करो। सबसे पहले consider S be the surface area, V with the volume, R with the radius. Given is ds by dt is equal to 2 centimeter square per second. R is equal to 6 centimeter. To find dv by dt. ओके, अभी dv by dt फाइंड करने के लिए सबसे पहले v पता होना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 pi r cube. 4/3 नाउ हमें क्या चाहिए? dv by dt. That means differentiate this with respect to t. क्या मिलेगा? dv by dt is equal to d by dt 4/3 pi r cube, which is equal to 4/3 pi is constant. Yes मैम, वो कनेक्शन चला गया था, वो क्या बताया, फिर से बताओ ना स्टार्टिंग से।
स्टार्टिंग से सी ये 9th वन। हाँ 9th वन ही सी। हाँ। क्वेश्चन क्या दिया है हमको, रेट ऑफ हमें दिया है सरफेस एरिया स्पेरिकल बलून का, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। So हाँ। ds by dt is 2 centimeter square per second and they are asking about rate of change of volume, that means dv by dt हाँ। when radius is 6 centimeter. Okay, so to find dv by dt सबसे पहले v के लिए हमें इक्वेशन चाहिए. Now we know that volume of sphere is 4 by 3 pi r cube, correct? Okay, so ये मेरे पास इक्वेशन आ गया. Now to find dv by dt differentiate this v with respect to t. सो LHS में मुझे मिलेगा dv by dt, RHS को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. टेक 4 by 3 pi outside d by dt of r cube which is equal to 4 by 3 pi into डेरिवेटिव ऑफ r cube विद रिस्पेक्ट टू t. सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो x रेज टू n के लिए. सो ये क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर. नाउ अभी हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे r वेरिएबल है. सो इस पे वापस चेन रूल अप्लाई करो dr by dt. दिस इज योर इक्वेशन 2. ओके, अभी ध्यान दो हमारे पास r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बट dr by dt नहीं है हमारे पास, करेक्ट. बट हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दिया है ds by dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हम इसका यूज करेंगे. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज हेलो मिस. s इज इक्वल टू, हाँ मैम वो स्क्रीन कुछ ज्यादा ही ब्लर हो रही है मैम, दिख नहीं रहा है थोड़ा. सबका ब्लर हो गया क्या? यस मैम. ओके जस्ट अ मिनट, बहुत ब्लर है. ऑन करके चालू करती हूँ. मिस पूरा ब्लू ब्लू हो गया है. वेट वेट, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, इक्वेशन 2 मिला सबको. dv by dt इक्वल टू 4 by 3 pi 3r स्क्वायर dr by dt. ओके, सो यहाँ से 3 3 कैंसल करो, क्या मिलेगा 4 pi r स्क्वायर dr by dt. अभी भी ब्लर है? सबको ब्लर दिख रहा है क्या? यस मैम. हाँ मैम. वेट, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ. ओके, सो मैं रिपीट करती हूँ फिर से, ध्यान दो. सो गिवन डेटा इज ds by dt is 2, r is equal to 6. हमें फाइंड करना है dv by dt. ओके, सो शेप क्या दिया है हमें, स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 by 3 pi r cube. Differentiate this with respect to t, you will get 4 pi r square dr by dt. ये है मेरा इक्वेशन 2. नाउ अभी मेरे पास वैल्यू r के लिए है, r इज इक्वल टू 6, बट वी डोंट हैव dr by dt, करेक्ट. मुझे dr by dt अब फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? सो एक और डेटा हमारे पास है ds by dt इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 pi r स्क्वायर. डिफरेंशिएट दिस
with respect to t. ds by dt is equal to d by dt 4 pi r square, which is equal to, take 4 pi outside since they are constant, and d by dt of r square, which is equal to 4 pi into derivative of r square is 2r, use chain rule, dr by dt, so which is equal to 8 pi r dr by dt. ये मुझे मिला ds by dt. Okay, so therefore dr by dt is equal to 8 pi r, ये इस साइड लेके आओ तीनों, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा डिवीजन में, 1/8 pi r ds by dt. Substitute this value in equation 2. So equation 2 क्या था हमारा, dv by dt is equal to 4 pi r square dr by dt. dr by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 pi r square into 1/8 pi r into ds by dt. जो टर्म्स कैंसिल होती है कैंसिल करो, r एंड ds by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड टेल मी फाइनल आंसर dv by dt. 6 मिला सबको, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यूनिट प्रॉपरली लिखना. And your final answer is volume of spherical balloon is increasing at the rate of 6 centimeter cube per second. मिला सबको? Okay. Now write down next question. Anyone have any doubts? Okay. So 10th one is, if each side of an equilateral triangle, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of square root 2 centimeter per second. Find the rate of increase of its area. Find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter. When its when its side of length 3 centimeter. I repeat, check करो एक बार. If each side of an equilateral triangle increases at the rate of square root 2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter. Okay, now I'll give you just 3 to 4 minutes. Just figure out हमें क्या दिया है, क्या find करना है. ठीक है?
Yes, Aman, it's correct. मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर. सिद्धेश. सिद्धेश. अक्षिता. हेलो. हाँ अक्षिता. हाँ मिस. क्वेश्चन पढ़ा. मिस इतना वॉइस ब्रेक हो रहा था, क्वेश्चन सुनने में ही नहीं आया और टेक्स्ट बुक है ही नहीं मेरे पास अभी. तो क्वेश्चन नहीं लिखा. नहीं, वॉइस ब्रेक हो रहा था. चैट पे भी लिख के भेजा है किसी ने, तो आप क्वेश्चन रिपीट करने को. तो मैंने रिपीट किया था उसके बाद. नहीं, बाद में लिखा था मिस. देखो अभी भी लिखा ही है, पर इतना पता है लेंथ दिया है उसका 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है जो ऑब्जेक्ट लिया है, और ज्यादा ही भेजा है मेरे पास. ओके सी मैं बता रही हूँ. हाँ. If each side of an equilateral triangle, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of square root 2 centimeter per second, हाँ. find the rate of increase of its area. हाँ, तो फिर हम लोग को साइड दिया लेंथ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो हाँ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या है. उसका साइड का लेंथ है ना. साइड का लेंथ है. प्रॉपरली रीड करो. हमें क्या दिया है. इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और जो हाँ उसकी साइड है वो इंक्रीज हो रहे हैं √2 सेंटीमीटर पर सेकंड से. हाँ मतलब कि रेट दिया है. हाँ, करेक्ट. दिया है. हाँ. if L is the side length, हम्म. then square root 2 क्या हो जाएगा हमारा. रेट क्या लिखेंगे. हाँ मिस. L में जो चेंजेस हो रहा है उसको मैं DL कैसे डिनोट करूंगी. उसका DL से डिनोट करेंगे ना उसको, तो DL/dt से. ओके सो dl/dt क्या दिया है मुझे. 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है. उसका एरिया निकालना है. एरिया निकालना है पक्का. मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया DA/dt निकालना है. ओके dA/dt फाइंड करना है. हाँ. नेक्स्ट डेटा क्या दिया है. वो बस इतना ही दिया है और लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर. हाँ L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके तो करेंगे कैसे. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 A². 3/4 L स्क्वायर. ओके हाँ. और तो फिर हम लोग वेट. ओके तुम अभी आगे सॉल्व करो. आयुष दुबे. यस मिस. हाँ इसके आगे का बताओ कैसे करेंगे. हमें फाइंड करना है dA/dt और मेरे पास a है. a के लिए इक्वेशन a इज √3/4 L स्क्वायर. dA/dt मुझे कैसे मिलेगा. यस मिस. dA/dt कैसे मिलेगा. मैम वो करेंगे, डेरिवेट करेंगे उसको. हाँ करो. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट DA टू by dt. मैम वो √3/4 L² है क्या. हाँ बिकॉज मैंने साइड L कंसिडर किया है. तुम A भी हाँ. कंसिडर कर सकते हो. मैम वो √3/4 को बाहर ले लो, कांस्टेंट ओके है. हाँ फिर dL²/dt. ओके मैम Then? अब ये x² के फॉर्म में है ना. हाँ फॉर्मूला तो अप्लाई ये करो. 2L अब इंटू dA/dt. dL/dt ओके. हाँ. और मैम अब 2 से 2 पर है ना. 2 1 2 2 2 4 नीचे कैंसिल कर दो. ओके √2 इंटू dL/dt. L इंटू dL/dt. तो मैं वहाँ पर DL² हो जाएगा क्या मैम वो. नहीं L इंटू dL/dt ऐसे ही रहेगा. नाउ अभी मैम वो DL इंटू L DL² नहीं होता है क्या.
नहीं, L इंटू DL बोल रहे हो तुम? हाँ मैम, नहीं नहीं, ये दो डिफरेंट चीज है। ये है लेंथ ऑफ साइड एंड ये सेपरेटली नहीं है, DL बाय DT इसके साथ है, ये पूरा एक, दिस इज वन फॉर्म, यस मिस। सेपरेट नहीं है। अब मुझे इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, DL बाय DT स्क्वायर रूट 2 एंड L इज इक्वल टू 3, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर निकालो, ठीक है? यस मिस। L इज इक्वल टू 3, DL बाय एक मिनट, DT स्क्वायर रूट 2। 3/2 इंटू 3 इंटू 2। हेलो हाँ, मैम 3√3/√2 आया। 3 चेक करो वापस एक बार, ये 3 ऐसे ही, देन हाँ ये 3 रूट ऐसे ही। मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 मैम वो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने मैम 2 को √2 इंटू √2 कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कैंसिल कर दिया। ओके, हाँ चलेगा फिर भी, ठीक है। मिस हाँ, रिपीट करो ना स्टार्टिंग से ये वाला सम। कहाँ थी तू, कौन है? श्रुति। ओके, सी श्रुति, किया क्या है हमने, हमारे पास वैल्यू क्या दी है, सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है, करेक्ट? देन रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट 2, दैट मीन्स DL बाय DT इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। नाउ फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दैट मीन्स DA बाय DT फाइंड करना है व्हेन L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट 3/4 L स्क्वायर। नाउ फाइंड क्या करना है, DA बाय DT, तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है? डिफरेंशिएट करके तुमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब L की वैल्यू हमारे पास है, DL बाय DT की भी वैल्यू है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर फाइंड करो, ओके? Yeah, just give me 2 minutes, I'll tell you next question. हेलो मिस। हाँ हेलो मिस। हाँ बोल। मिस ये एक क्वेश्चन था मिस, एक कर्व दिया था y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x का कर्व था, तो Y फिर is equal to e to the power 2x. 2x। Okay. हाँ हम्म, मिस, तो फिर उसमें इसका जो टेंजेंट है ना कर्व हाँ, का एट पॉइंट 0,1, तो उसमें पूछा था वो x एक्सिस पे कहाँ मीट करता है। x एक्सिस पे कहाँ मीट करता है? हाँ मिस। क्वेश्चन रिपीट करो एक बार, क्वेश्चन वापस। मिस हमें कर्व दिया है, ये आपने जो लिखा वही कर्व है, y is equals to e to the power 2x, और क्वेश्चन ऐसा दिया है, where does the tangent to the curve at 0,1 meet the x axis? ओके, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, ठीक है, मैं ये सॉल्व करके बताती हूँ तुमको, ठीक है? ओके मिस। किसका डाउट है ये वैसे? अमन, यस, अमन मैं PDF के साथ ही इसको भेजूंगी अभी, ठीक है? इसका सॉल्यूशन। यस मिस। हाँ, ओके, सो आगे करते हैं क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया। फॉर्मूला पढ़ो तब तक, मैं क्वेश्चन बताती हूँ। Okay, so question number 11. See, 11th one is homework. Easy है, सेम अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है. So 11th one is homework.
12th वन क्वेश्चन लिखो. The edge of a cube, the edge of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. The edge of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which its volume is decreasing. Find the rate at which its volume is decreasing when the edge of the cube is 2 centimeter. Find the rate at which its volume is decreasing when the edge of the cube is 2 centimeter. Start solving. हेलो मैम. मैम वो अमन ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें हाँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करके y का वैल्यू हाँ. 0 डालेंगे तो x का पॉइंट मिलेगा ना, तो वो x एक्सिस का पॉइंट पे मिलेगा. हाँ वही करना है. पहले कमला फिर से टेंजेंट बोल, फिर से का बोल. इक्वेशन फाइंड करो. टेंजेंट का इक्वेशन. सी इक्वेशन. हाँ सी हमें क्या दिया है, 0.1 दिया है पॉइंट एंड y इज इक्वल टू e रेज टू 2x दिया है. यहाँ से सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करो. हाँ मिस, उसका 2 आया अगर स्लोप देखे तो उसका स्लोप निकाला. 2 मिला. हाँ. हाँ देन इसके बाद इक्वेशन फाइंड करो. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो. 2x minus y minus 1 equal to 0. देन अभी हमें क्या चाहिए कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए ना हमें, तो y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो. इक्वेशन क्या मिला? ये हर्ष किसका आंसर 2x बता. minus y minus 1 equal to 0. X ओके हाफ नाउ मिल रहा डोंट है मिक्स फिर. अप ऑल क्वेश्चंस. हम लास्ट में करेंगे ये. 10 मिनट रुको. ठीक है. यस मिस. हाँ वरना बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे. सो क्या मिला 12th वन आंसर? 7.2 मिला सबको. जिसने नहीं किया अभी तक, सी एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6. सपोज एल मैंने एज ले लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एल मुझे दिया है dl बाई dt इज 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके नाउ हमें फाइंड क्या करना है, dv बाई dt व्हेन l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब. differentiate this with respect to t, you will get dy by dt is 3l square dl by dt. अब l और dl by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. फाइनल आंसर 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मिलेगा. वेरीफाई करो. डन. ओके राइट डाउन L 2 34. सेंटीमीटर है क्या मिस? हाँ L 2 सेंटीमीटर है. L is 2 सेंटीमीटर. बोलू नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया सबका? हाँ मिस. Okay, write down 13th one. A man of height 2 meter. A man of height 2 meter walks at a uniform speed of
walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour away from a lamp post of 6 meter high. I repeat, a man of a height 2 meter walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour away from a lamp post of 6 meter high. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. लिख लिया सबने क्वेश्चन? सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका. सी हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट दी है 6 मीटर एंड हाइट ऑफ मैन दी है. ठीक है, सपोज ये मेरा लैम्प पोस्ट है, consider as AB, which is given as 6 meter high. Okay, suppose this is height of man, which is equal to 2 meter. Consider as CD. Okay, suppose ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है. Now ये मेरा सोर्स पॉइंट है E. मुझे फाइंड आउट करना है रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग. तो शैडो मेरा क्या आ जाएगा, दिस CE रिप्रेजेंट शैडो. सपोज XY कंसिडर करो. मुझे फाइंड क्या करना है, dy by dt. इतना समझा? हाँ बस. हाँ. देन एक और डेटा दिया है हमें, at a uniform speed of 6 kilometer per hour away from a lamp post of 6 meter high. Okay, that means see AC is the distance of a man from the lamp post. That means dx by dt हमें दिया है 6 kilometer per hour. इतना समझा? हाँ बस. क्या फाइंड करना है, क्या दिया है? dy by Okay. dt. तो हम प्रॉपर, हाँ. सो सबसे पहले जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो लिख लो, डिनोट क्या कर रहा है. लेट AB be the lamp post, CD represent height of man, CE is equal to Y, B length of shadow, AC equal to X, B distance of men from lamp post. Now given dx by dt equal to 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब देखो जो ये दो हाइट मुझे दी है वो मीटर में दिया है. ठीक है, एंड dx by dt मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया है. तो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में. दिस इज इक्वल टू 6 इंटू आइदर 1000 by 3600 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, और 5/3 अगर डायरेक्टली आता है. करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. दिस इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड. ये मुझे मिला dx by dt. कन्वर्ट करना भूलना नहीं. ओके, नाउ फाइंड क्या करना है, सबने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, dy by dt फाइंड करना. ओके, नाउ अभी ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABE, दिस larger one
wait, I'll use color pens so that okay, see this triangle ABE and triangle CDE, are they similar? Yes, miss. Okay, कैसे? See these two angle Similarity of triangle. 90 डिग्री, ये है मेरा कॉमन एंगल एंड ये मेरा लाइन है, इस पे वापस से ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। हाँ करेक्ट? यस, राइट और नॉट? यस मैम। यही तीन मिलेगा ना मुझे, तीन एंगल 1 2 3, यस मैम। करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, so that means these two triangle are similar. यस हाँ, तो डायग्राम अपने साथ रखो। ये मुझे क्या मिलेगा? दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ये लिखना आता है ना तुम लोग को? जो जो एंगल सिमिलर होंगे उनके नाम एक साथ आने चाहिए, लाइक ए इज सिमिलर टू सी, सो ए सी, बी इज सिमिलर टू डी, सो मिडल में ई इज सिमिलर टू ई। ओके ओके, अभी साइड के रेशियो लिखो। दिस implies AB upon CD is equal to AE upon C। ये समझा सबको? Since these two triangle are similar, इनके sides भी similar होंगे। अब साइड कौन सा ले रही हूँ मैं? AB is similar, AB divided by CD is equal to AE divided by C। ओके, मैंने यही दो वैल्यू क्यों ली? बिकॉज मेरे पास ए बी एंड सी डी की वैल्यू है ऑलरेडी, ठीक है, और मुझे dy बाय डी टी फाइंड करना है, सो मुझे x और y मेरे इक्वेशन में चाहिए, इसीलिए मैंने ये साइड्स ली हैं, ठीक है। नाउ सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए बी मेरे पास है 6 मीटर, 6 डिवाइडेड बाय सी डी इज 2 मीटर विच इज इक्वल टू सी ए इज AC प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय C इज y, सो 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y एंड देयरफॉर सिंपलीफाई करो, 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x बाय 2। इक्वेशन मिल गया। नाउ फाइंड क्या करना था हमें? dy बाय dt। Differentiate this with respect to t. dy by dt is equal to half dx by dt. Since 1 by 2 is constant, मैंने बाहर ले लिया। ओके, अब dx by dt की वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास 5 by 3, सो मल्टीप्लाई करो 1 by 2 into 5 by 3 which is equal to 5 by 6 मीटर पर सेकेंड dy by dt। समझा सबको कैसे करना है? Ask me if you have any doubts. Miss Miss बोलो। d by dx of sin inverse sin square x क्या होता है? फिर से बोल। d by dx of sin inverse sin square x sin inverse sin square x। square x ब्रैकेट में। ओके हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई सी पहले चेक करना होता है कि
हम अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं कर सकते तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो इसको हाँ मिस, सिंप्लीफाई। मतलब वही सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? वही समझ में नहीं आ रहा था सिंप्लीफिकेशन। हाँ देख रही हूँ, 1 मिनट। सिंप्लीफाई, वैसे कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है ना यहाँ पे, इसको नहीं मिस, डायरेक्टली कर। डायरेक्ट ही वही। सर हाँ एक्स आएगा क्या उधर? नहीं एक्स नहीं आएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाँ हाँ साइन स्क्वायर। एक्स इज हाँ एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर है हाँ ना। स्क्वायर है। हम्म, डायरेक्टली करो इसको, छोटा सा फंक्शन है वैसे डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ मिस, डायरेक्टली कर। हाँ किसने पूछा, कौन पूछ रहा था? डायरेक्टली करिए। अमन तू पूछ रहा था क्या? यस मिस। हाँ डायरेक्टली कर अमन, अगर मेरे ध्यान में कुछ आएगा इसको चेंज करने तो मैं बताती हूँ, ओके मिस। वैसे तो इसको चेंज। साइन 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर x आ रहा है स्टार्ट। हाँ इसको मतलब ये करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x ऐसा आएगा ना, इंटू, हाँ हाँ, इंटू साइन x। साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वापस आ जाएगा 2 साइन एक्स इज कॉस एक्स डिवाइडेड या साइन 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x, मिस साइन स्क्वायर, हाँ हाँ बराबर। ऐसा आएगा ना। मिस वो नीचे क्या लिखा है? यहाँ पे हाँ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। हाँ मिस। ओके सो ये क्वेश्चन हो गया। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। okay so 14th one is homework, at least you can solve first part, find the rate at which his shadow is shortening. Okay so question number 14th is homework, 14th first part try करो, second मैं कल बताऊंगी। okay any doubts? हाँ अमन तेरा क्वेश्चन मिला क्या, आंसर सॉल्व किया क्या? नहीं मिस, अभी वो किया।